So hello guys and welcome back to my YouTube channel. I'm actually riding this new Royal Enfield Meteor 350 thanks to the guys at Royal Enfield to lend this motorcycle out so that I can actually test this motorcycle out extensively in city and on highways and let you guys know my initial impressions and insights with respect to this motorcycle. I personally feel that whatever I'm actually going to share with you guys is actually going to be more like insights related to the motorcycle and not the traditional review. It's been like this is actually the third day I'm riding this motorcycle primarily in the city. So when I picked this motorcycle up from the showroom, the first half an hour I was actually trying to get used to the motorcycle, and now when I'm actually used to the motorcycle, the way it rides, the way the handle feels, the way the brakes are, the way the throttle responds, it just almost perfect, I would say. Guys are claiming that this motorcycle does not vibrate, and they're not lying. It doesn't. I mean, if you know the UCE motors from Royal Enfield, they vibrate a lot, but that is not the case with this particular motorcycle. Even in the red lines, there are very minute vibrations on the handlebar and the foot peg. Thanks to the counterbalancer or the technology which is also in the 650 twin, which means that the vibes are gone. Now, specification wise, engine wise, I will not talk about the numbers, but when you are on the signal, you can actually feel some components in the engine that are actually doing their job. When we say that they are reducing the vibes to a certain limit, I'm not really sure whether it is the counterbalancer, but there is a constant beat or the mechanical movement which is happening in the engine that can be felt on both the pegs. Now, they are not vibrations, they are the mechanics that are actually working in the engine, and that can be felt only when the motorcycle is on the idle RPM. So even when you give the throttle slightly, that mechanical movement is gone. Brakes are improved by a huge margin. मतलब मैंने थंडरबर्ड भी चलाया था, क्लासिक भी चलाया है. मतलब जो ट्रेडिशनल आरी होता था यार, बाइक भगाओ, पहली बात भागते भागते टाइम लगता था, फिर बाय द टाइम यू आर इन द 80s यू ऑलरेडी इन द टॉप गियर. दैट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ देयर विद दिस पर्टिकुलर मोटरसाइकिल. फोर्थ गियर में गाड़ी 100 हो जाता है एंड और खींच सकते हैं, बट डजंट रियली मेक सेंस बिकॉज पावर जो है रेव बैंड में बहुत जल्दी आता है, वाइब्स थोड़े बढ़ जाते हैं. एंड आई डोंट find it sensible because these kind of motorcycles are not the sports bike where you can constantly ride on the red line, and they are more of what we say fun to ride motorcycles. सिटी में यार आप चला रहे हो आराम से, हाईवे पे गए, कभी क्रूज़ कर रहे हो 80-100, दैट इज़ अ स्वीट स्पॉट. उसके आगे जाना सेंसिबल आई थिंक सो रोड कंडीशंस पे नहीं है. इफ़ वी टॉक अबाउट द गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, वहाँ पे आपको लगेगा पावर थोड़ा कम है बिकॉज यू कैन एक्चुअली क्रूज एट 100-120. दिस मोटरसाइकिल स्वीट स्पॉट 80-100 भी आप ऑल डे कर सकते हो. एंड द बेस्ट पार्ट इज while riding this motorcycle in the city, the major issue with other motorcycle versus the brand Royal Enfield is that गियरिंग टॉल होने के बाद भी
बॉटम एंड पे हाई गियर्स के अंदर भी टॉर्क है ना आपको प्लेंटी मिल जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट सिटी में आप अगर समझ लो मॉडरेट ओवरटेक्स करना है, कोई आगे रिक्शा है, टेम्पो है, उनको ओवरटेक करना है, इट बिकम्स वेरी वेरी ईजी ऑन दीज मोटरसाइकिल्स। मतलब थिंक अबाउट इट, यू आर बेयरली क्रॉलिंग ऑन द रोड, ऑल ऑफ अ सडन एक स्पीड ब्रेकर आता है, यू ऑलरेडी इन द सेकेंड गियर, and post that you want to do the overtake, you don't need to downshift to the first, you can just pull the motorcycle in the second, and while doing that you can actually gain a speed up to like 50 or 60 km/h in the second gear itself, and that is cool. I'll give you a demo, मतलब ये सिग्नल पे say for example अभी 2-3 रिक्शा है आगे, I want quick overtakes, I should get some space at least. तो अभी इधर ऐसा मिला ये जगह, ठीक है। I am in the second right now. Almost 70 km/h in the second gear itself. और वो सेकेंड गियर पे भी आप सिग्नल के ऊपर, स्पीड ब्रेकर के ऊपर आराम से यार ग्लाइड करके जाओगे। यू डोंट नीड टू डाउन शिफ्ट टू फर्स्ट, आइडियली यू शुड, बट समझ लो अगर मन नहीं है आपका, मूड ही नहीं है करने का डाउन शिफ्ट, सेकेंड में टॉर्क है मोटरसाइकिल के अंदर एंड इट्स क्वाइट यूजेबल, रेव बैंड में नीचे ही आता है, सो थिंग्स आर क्वाइट ईजी। दीज काइंड ऑफ मोटरसाइकिल्स आर एक्चुअली गुड riding in the city as well as on the highway. Coming back to the main topic, city में where okay, so before we go to that topic, engine kill दबाने के बाद headlight जो है बाइक का वो ऑफ हो जाता है. So there is a dedicated relay on this particular motorcycle through which आपका electricals सब बंद हो जाएगा. एंड दैट इज़ गुड बिकॉज BS4 के अंदर इंजन किल होने के बाद हेडलाइट ऑन रहता है, टेल लाइट ऑन रहता है, वो सब मगजमारी इस मोटरसाइकिल के अंदर नहीं है. मतलब इंजन किल ऑन रहेगा आपका, आपको बैटरी का यहाँ पे आएगा कि बैटरी इज़ नॉट व्हाट वी से कनेक्टेड. सो इफ़ यू डू दिस एंड पोस्ट दैट यू गिव अ सेल्फ, आपका सब इलेक्ट्रॉनिक्स जो है मोटरसाइकिल के अंदर वो चालू हो जाएगा. ओके, सो ट्रैफिक के अंदर चलाने टाइम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, मतलब मुंबई में बहुत ही ज़्यादा बेकार ट्रैफिक है. और इन सिचुएशंस के अंदर फर्स्ट सेकंड पे अगर आप कॉन्स्टेंटली चलाओगे, क्लच मूवमेंट जो है मोटरसाइकिल का वो थोड़ा हैवी हो जाता है. स्लिपर क्लच अगर होता, आई थिंक वो इशू जो है वो सॉल्व हो जाता, बट इसमें स्लिपर क्लच जो है वो नहीं आता. सो क्लच मूवमेंट जो है थोड़ा हैवी हो जाता है. एंड इफ़ यू गाइज आर नॉट वेयरिंग सम गुड क्वालिटी ग्लव्स, इसका जो लेवर का शेप है इट इज़ थिन, इट इज़ राउंडेड ऑन द एजेस ओनली. सो वाइल मेकिंग द ऑपरेशंस इन हैवी ट्रैफिक, इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर का जो सेकंड बोन है ना वो थोड़ा मेरा पेन होना चालू हो गया था. इसीलिए फिर मैं ग्लव्स पहन के ही रिकमेंड करूँगा चलाना लोगों को. और एल्स इफ़ यू डोंट प्रेफर वेयरिंग ग्लव्स, व्हाट यू कैन डू इज़ लेवर्स को उसके बदल दो. Coming back to riding in traffic, these kind of overtakes are quite easy. Apart from that, engine heating bearable है. अभी बड़ा इंजन है, 350cc है, पूरा ब्लैक्ड आउट है, गरम होता ही है, ठीक है, गरम होगा ये. और मुंबई के ट्रैफिक में हर एक गाड़ी गरम होती ही है, तो ये भी होता है. बेरेबल उसको बोल सकता हूँ, बट समझ लो अगर आप शॉर्ट्स एंड स्लीपर्स वगैरह या फिर स्लिप ऑन्स पहन के चलाना प्रेफर करते हो, इन दैट केस यू विल फाइंड इट अ बिट डिफ़िकल्ट टू हैंडल द हीट. मतलब आई विल नॉट इवन एडवाइज यू डूइंग और गोइंग क्रेजी लाइक दैट. लोगों को पसंद है यार वो बॉक्सर्स शॉर्ट्स पहनेंगे, फ्लिप फ्लॉप्स होता है नीचे. आई हैव सीन रिच पीपल डूइंग दिस काइंड ऑफ शिट. तो वो करोगे ना आप, सेंसिबल नहीं है. दूसरी बात, एग्जॉस्ट की जो टच पॉइंट्स है वो फुट पैक के थोड़ा ही चिपक के. सो अगर आपका हाई सोल या फिर थिक सोल वाला शूज़ है वो टच होएगा. बिकॉज देयर वाज वन मोर मोटरसाइकिल इन द शोरूम, मीडिया बाइक ही था,
बट दैट वाज अ बेस वेरिएंट। और पता नहीं किसने रिव्यू किया था, बट राइडिंग शूज़ का जो सोल होता है बड़ा वाला, वो लग के ना एग्जॉस्ट के ऊपर चिपक गया था, उसका रबर मेल्ट होके। सो दैट इज़ वन थिंग। फक, क्या ऑफुल आवाज है रे इसका। कैसा ओव्हरटेक होतं, इतका इरिटेट झालेलो ना मी त्याचा आवाज ऐकून, साला डोक्यातच जात होता माझ्या तो। सो यू कॅन ओव्हरटेक द क्लासिक 350 विथ दिस मोटरसायकल.